الخدمت کے تحت گلبرگ میں اجتماعی قربانی کا سلسلہ جاری۔ امیر جماعت اسلامی کراچی نے اجتماعی قربانی کے مرکز کا دورہ کیا۔ سٹی 21 سے گفتگو میں منم ظفر کا یہ کہنا تھا کہ فلسطین کے لیے بھی 1800 جانور قربان کیے جائیں گے۔ تفصیلات ہم جانیں گے جواد آصف کی رپورٹ میں۔ عید الاضحیٰ کے پہلے روز بھی جماعت اسلامی نے میئر کراچی کو نہ چھوڑا۔ منم ظفر خان نے میئر سے کراچی کی ذمہ داری اٹھانے کا مطالبہ کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی کا کہنا تھا کہ پانی کی قلت اور لوڈ شیڈنگ سے عید کے روز بھی نجات نہیں ملی۔ کہتے ہیں عید کے روز بھی پانی دستیاب نہیں، 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے کہ الیکٹرک کے اندر وائٹ کالر لوگ بیٹھے ہیں۔ اہل کراچی کو اس وقت جن مسائل کا سامنا ہے ان میں سے ایک بڑا مسئلہ پانی کی شارٹیج ہے، اور پانی کی شارٹیج کے نتیجے میں کراچی کا ایک بڑا حصہ جس کے اندر لانڈی، کورنگی، نئی کراچی، نارتھ کراچی، ناظم آباد اور اسی طرح فیڈرل ایریا کے کچھ علاقے، اورنگی ٹاؤن، بلدیہ ٹاؤن، یہ سارے علاقے وہ ہیں کہ جہاں پانی کی شارٹیج ہے۔ منم ظفر خان کا کہنا تھا کہ علائشیں اٹھانا بلدیہ عظمیٰ کی ذمہ داری ہے، تاہم جماعت اسلامی کے پاس جو ٹاؤن ہیں وہ صاف نظر آئیں گے۔ عید کے موقع پر جگہ جگہ اوفل جو ہے وہ جگہ جگہ اوجڑیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، یہ ذمہ داری بھی بنیادی طور پر KMC کی ہے۔ الحمدللہ جماعت اسلامی کے پاس 9 ٹاؤن ہیں، ان 9 ٹاؤنز کے اندر ہماری پوری ٹیم لگی ہوئی ہے، محنت کر رہی ہے۔ اوفل کلیکشن کا بھی معاملہ ہے، کھالے بھی جہاں وصول کر رہے ہیں ہم، وہیں اس کے ساتھ ساتھ اوجڑیوں کو اٹھانے کا نظام بھی قائم کیا گیا ہے، اور میں یہ الحمدللہ یہ بات پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی کے جو 9 ٹاؤن ہیں وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں فوری طور پر جو ہے وہ اسی طرح اوفل اٹھائی جا رہی ہیں۔ الخدمت کے تحت گلبرگ میں اجتماعی قربان گاہ کا دورہ کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی فلسطینیوں کو نہ بھولے، کہا 1800 جانور قربان کر کے گوشت فلسطین بھجوایا جائے گا۔ کیمرہ مین شاذب رضا کے ساتھ محمد جواد آصف، سٹی 21۔ اور گورنر ہاؤس میں سنت ابراہیمی کی ادائیگی، 100 اونٹ، 100 بکرے اور 10 بیل کی اللہ کی راہ میں قربانی کی گئی۔ گورنر ہاؤس میں قربانی کا سلسلہ 3 روز تک جاری رہے گا۔ کامران ٹیسوری اور ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے عید کی مبارکباد دی۔ ڈاکٹر فاروق ستار کا یہ کہنا تھا کہ حکومتوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس بار بھی عوام کی ہی قربانی کرنی ہے۔ کچھ مزید اہم تفصیلات جان لیں گے فرحان خان کی رپورٹ میں۔ کراچی میں عید الاضحیٰ پر سنت ابراہیمی کا سلسلہ جاری۔ گورنر ہاؤس میں بھی 200 سے زائد جانور قربان کیے جا رہے ہیں۔ 3 روز کے دوران 100 اونٹ، 100 بکرے اور 10 بیل قربان کیے جائیں گے۔ میڈیا سے گفتگو میں کامران ٹیسوری کا کہنا تھا کہ پوری قوم سمیت مسلم امہ کو عید الاضحیٰ کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج میں ان تمام شہداء کے لواحقین کو بھی تعزیت کرتا ہوں، چاہے وہ ہماری فورسز کے شہید ہیں جنہوں نے سرحدوں پہ اپنی جانیں قربان کی، چاہے وہ اسٹریٹ کرائم میں شہید ہوئے۔ میری جماعت MQM پاکستان کے جتنے شہید کارکنان ہیں ان کی فیملی سے بھی میں اظہار تعزیت کرتا ہوں، اور کسی بھی سیاسی جماعت کے کارکنوں کی شہادت پر ان کی جماعت سے اور ان کے لواحقین سے اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ چیئرمین MQM پاکستان خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ تمام ممالک کے کونسل جنرل نے آج ہمارے ساتھ عید کی نماز ادا کی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم فلسطین کے حق میں آج بھی کھڑے ہیں۔ خاص طور پر فلسطین کے نہتے عوام کو آج کی دن کی مبارکباد اور سلام تحسین۔ آج ہمارے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے کہ کراچی میں موجود تمام اسلامی ممالک کے کونسل جنرل یہاں موجود ہیں، اور ہم مل کر بھی فلسطین کی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہاں پر KMC گراؤنڈ PIB میں میڈیا سے گفتگو میں فاروق ستار نے حکومتوں پر تنقید کے نشتر برسا دیے۔ کہتے ہیں فیصلہ کر لیا گیا کہ اس مرتبہ بھی عوام کی ہی قربانی کرنا ہے۔ 78 سالوں سے پاکستانی عوام ظلم سہ رہی ہے۔ اگر اب بھی عوام کو قربانی کا بکرا بنایا گیا تو غلط رد عمل سامنے آ سکتا ہے۔ 77-78 سالوں سے پاکستان کے عوام، غریب عوام، مڈل کلاس، مظلوم عوام ناانصافی اور ظلم کو سہ رہے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اب پاکستان کی بقا اور سلامتی کا سوال ہے۔ اگر اب بھی عوام ہی کو قربانی کا بکرا بنایا گیا تو پھر یہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا۔ جب لاٹ چلے گا بنجارہ، 3 طرح کے رد عمل سامنے آئیں گے۔ لوگوں کی خودکشیاں بڑھ جائیں گی،
दूसरा रद्द-ए-अमल ये होगा कि लोग स्ट्रीट क्राइम पर और ज़्यादा आमादा होंगे और ज़्यादा मेरे मासूम बेगुनाह नौजवानों का कत्ले आम होगा। डॉक्टर फारूक सत्तार ने हुक्मरानों को होश के नाखून लेने का मशवरा दिया। कहा कि ऐसा ना हो, लोग आज़ाद कश्मीर जैसी बगावत को अपना लें। कैमरामैन दानियाल के साथ फरहान खान, सिटी 21। अब कुछ बात करेंगे पहले रोज़ गर्मी के हवाले से। तो ईद के पहले रोज़ कराची में गर्मी का राज बरकरार रहा। शहरियों की बड़ी तादाद ने बच्चों और अहले खाना के हमरा फैमिली पार्क्स का रुख किया। पार्क्स में बच्चे झूलों से लुत्फ़अंदोज़ हुए और ईद का मज़ा दोबाला किया। तफसीलात आजिज़ जमाली की रिपोर्ट में। ईद कुर्बान का पहला दिन शहर कायद में दिन भर रही गर्मी, शाम को हुआ मौसम सुहाना। शहरियों ने फौरन पार्क्स का राह शहरियों ने अहले खाना के हमरा फैमिली पार्क्स का रुख किया। बच्चों की तो मौज हो गई, झूले लिए, गाड़ी चलाई और कश्ती की सैर का भी लुत्फ उठाया। बच्चों के साथ इनके वालिदैन भी पार्क्स में लुत्फअंदोज होते रहे। शहरियों का कहना था कि एक तो गर्मी, फिर दिन भर कुर्बानी की मसरूफियात रही, सुकून की खातिर शाम को पार्क्स में आए हैं। अच्छा लग रहा है और ईद का दिन है तो लाजमी बात है, लोग आ रहे हैं फैमिलीज को लेके, तो एंजॉय किया है। काफ़ी गर्मी भी थी लेकिन एंजॉय किया है बकरीद। और माशाल्लाह सुबह से तो कुर्बानी में लगे हुए थे क्योंकि ये कुर्बानी का दिन है। अब फिर शाम में जब बच्चे थक जाते हैं तो फिर बच्चे उसके बाद बोलते हैं झूले वगैरह के लिए, तो इसलिए झूले वगैरह के लिए लेकर आए इनको। बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, फैमिली का है। कई पार्क्स में ईद की वजह से मेले का समा था। कैमरामैन वकास लोधी के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। ईद का दिन बच्चों के लिए लाता है खुशियों का पैगाम। बड़ी ईद पर घूमने के साथ कई डिशेस पर हाथ साफ करने का भी मिलता है मौका। शाह फैसल कॉलोनी में मेला सज गया। नन्हे बच्चे ऊंट और घुड़सवारी के साथ साथ झूला झूलने में भी मगन रहे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ईद की खुशियां मनाने के लिए नन्हे बच्चे भी किसी से कम नहीं। कुर्बानी के बाद बच्चों ने सैर व तफरीह को अपना हदफ बना लिया। शाह फैसल कॉलोनी में सजे ईद मेले में बच्चे खेल कूद में मगन। ऊंट और घुड़सवारी के शौकीन बच्चों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। बच्चे कहते हैं, सुबह में वालिदैन के साथ कुर्बानी का गोश्त तकसीम किया, इसके बाद हमारा सैर व तफरीह का वक्त है। काऊ की कुर्बानी देखी, हमारे घर पे बहुत सारे मेहमान आए, हम लोग फिर मेले में आए। ईद तो माशाल्लाह से बड़ी अच्छी गुजरी है और अभी भी आया, मैंने कोई झूले नहीं लिए। ईद की खुशियों को भरपूर अंदाज मनाने में मसरूफ बच्चों ने मजीद कहा कि ईद कुर्बान पर चटपटे खानों की लंबी लिस्ट भी तैयार कर रखी है, जिसके मुताबिक वालदा से लजीज खाने तैयार करवाएंगे। ईद कुर्बान के पहले दिन शहर की सफाई का मिशन। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि शहर से 1.5 लाख टन कचरे को ठिकाने लगाने का प्लान तैयार किया। मुख्तलिफ इलाकों से जमा होने वाली अलाइशों को लैंडफिल साइट्स पर मुंतकिल किया जाएगा। IG सिंध और कमिश्नर कराची से भी बात की है कि वो दफ़ा 144 पर अमल दरामद करवाएं। मज़ीद अफसलात जानेंगे शोएब मुख्तार की रिपोर्ट में। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी, शहर की सड़कों और गलियों को साफ सुथरा करने का प्लान। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब मैदान में आ गए। ईद उल अज़हा का पहला दिन मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दे दिया। मेयर कराची ने जिला शर्की, वस्ती और गरबी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू में मेयर कराची का कहना था कि शहर से उठाई गई अलाइशों को जाम चाकरो, गोंद पास और शराफी गोट में बनाई गई लैंडफिल साइट्स पर मुंतकिल किया जाएगा। शहर के 25 टाउन में हमने 99 कलेक्शन पॉइंट्स बनाए हैं। हमने शहर भर में 25 टाउनों में 99 कलेक्शन पॉइंट्स बनाए हैं। यानी ये गली मोहल्लों से अलाइशों को उठा के उन कलेक्शन पॉइंट्स में लाया जाए और कलेक्शन पॉइंट से फिर वो हमारी 3 लैंडफिल साइट्स हैं, जाम चाकरो, गोंद पास और शराफी गोट की। वहाँ पे हमने ट्रेंचेस को खोदा है जहाँ पर इनको ज़मी बोस किया जाएगा। तो इंशाल्लाह जब तक ये कार्रवाई मुकम्मल नहीं होती, ऑपरेशन मुकम्मल नहीं होगा। मेयर कराची का कहना था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अमले को मुख्तलिफ इलाकों में आज काफ़ी दुश्वारी का सामना रहा। हमारा टारगेट है शहर की सफाई सुथराई से मुतालिक हर मुमकिन इकदामात उठाएं। शहर के हर इलाके में ये जो स्कैवेंजर्स हैं ये हर जगह पहुँचे हुए थे, हाथ में छुरियाँ थी, इनके चाकू थे और ये अलाइशों को फाड़ के वो बटवा निकाला जाता है, उसको फिर बेचा जाता है शायद मार्केट में। तो वो कर रहे थे कार्रवाई और मैंने IG साहब से भी बात की, मैंने कमिश्नर साहब से भी बात की कि सेक्शन 144 जो हमने लगवाया था, हमारी रिक्वेस्ट पे लगाया गया था, उसका बुनियादी टारगेट ये था कि उसके ऊपर कानूनी चाराजोई की जाए और ये जो लोग इस तरह की चीज़ करते हैं इनको गिरफ्तार किया जाए कानून के मुताबिक। मेयर कराची का कहना था कि अलाइशें उठाने के बाद शहर की सड़कों पर चूना छिड़कने के साथ साथ जरासीम कुछ स्प्रे करवाया जाएगा। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। और ईद के दिन अलाइशें उठाने का काम वज़ीर बल्दिया सिंध सईद गनी काम से मुतमईन।
कहते हैं कि सूरत हाल इत्मीनान बख्श है। 4 रोज़ के ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कारकर्दगी सामने आएगी। रिपोर्ट करेंगे एहसन अब्बासी। का पहला दिन बल्दियाती इदारों और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इम्तिहान। वजीर बल्दियात इंतजामात से मुतमईन। पहले रोज सूबाई वजीर बल्दियात ने शहर में बनाए गए डंपिंग पॉइंट्स का दौरा किया। टाउन और यूसीस चेयरमैन से मसाइल के हवाले से तफसीलात तलब की। जो छोटी गलियां हैं, मोहल्ले हैं, वहाँ पर कुछ थोड़ी सी मिसमैनेज होती ज़रूर है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि मगरिब के बाद से 1-2 घंटे के अंदर अंदर ये सारी आलाइशें जो हैं आज साफ़ हो जाएं। लेकिन उसके बावजूद भी हम इस बात की भी हमें अंदाज़ा होता है कि कहीं ना कहीं चीज़ें रह जाती हैं। कुछ लोग कचरा कुनी में फेंक देते हैं और वो रह जाती हैं, लेकिन मजमूई तौर पर सूरत हाल ठीक है। सईद गनी ने सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का फिलहाल ऑपरेशन जारी है। कारकर्दगी का अंदाजा ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद सामने आएगा। ये तो पहला दिन है ना, मुतमईन ना मुतमईन होने की बात तो जब 3 दिन मुकम्मल हो जाएंगे उस वक्त हम देख के सकेंगे। लेकिन अभी तक जो कार्रवाई हो रही है वो तो ठीक है, लेकिन मैंने जैसे कहा ना कि शहर भर में कोई 99 के करीब जो है वो बनाए गए हैं कलेक्शन पॉइंट्स। अगर तो ये 99 पॉइंट्स रात को 0 हो जाते हैं तो बिल्कुल आज की कार्रवाई से मुतमईन हो जाएंगे, लेकिन अगर उसमें कहीं कमी रह जाती है तो फिर ज़रूर सवाल उठाएंगे। सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी का कहना था कि शहरी ईद के मौके पर बल्दियाती इदारों से ताउन करें। वो इन्हीं के मसाइल के हल के लिए ईद के तीनों रोज फराइज की अदायगी कर रहे हैं। कैमरामैन मन्नान के साथ एहसन अब्बासी, सिटी 21। ईद उल अज़हा की नमाज के लिए शहर भर में इज्तिमात हुए। मुफ्ती मुनीबुर रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने ईद की नमाज अदा की। मुर्तज़ा वहाब, मिर्ज़ा इख्तियार बेग, डॉक्टर फारूक सत्तार ने भी नमाज अदा की। बड़ी ईद के मौके पर शहरियों का कहना था कि फ़लस्तीन भाइयों को अपनी दुआओं में लाजमी याद रखें। तफसीलात इस रिपोर्ट। ईद उल अज़हा मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। शहर भर में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। टी ग्राउंड में मुफ्ती मुनीबुर रहमान की इमामत में नमाज ईद अदा की गई। नाज़माबाद नंबर 2 ईदगाह ग्राउंड में नमाज ईद मुफ्ती तकी उस्मानी ने पढ़ाई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मुस्लिम ममालिक के कौंसिल जनरल के हमरा गवर्नर हाउस में ईद की नमाज अदा की। चेयरमैन MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भी मौजूद थे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद और रुकन कौमी असम्बली मिर्जा इख्तियार बेग ने पोलो ग्राउंड ईदगाह में नमाज ईद अदा की। KMC ग्राउंड PIB कॉलोनी में फारूक सत्तार ने भी ईद की नमाज अदा की। इधर गुरु मंदिर पर सबील वाली मस्जिद में ईद की नमाज हुई। मुल्की सलामती और अमन अमान समेत फ़लस्तीनियों के लिए दुआएं की गईं। नमाज के बाद लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी और कहा कि इस ईद पर फ़लस्तीनी बहन भाइयों को ना भूलें। को ईद मुबारक कहेंगे और सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के बाद यही है कि दुआ के बस अल्लाह पाक दुनिया भर में हमारे मुसलमान भाइयों को, खासतौर पर फ़लस्तीन के मुसलमान भाइयों को अल्लाह पाक जो ना अपने अमान रखे, उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आज सुन्नत इब्राहिमी का दिन मनाया जा रहा है ख़ास तौर पे, तो उसके लिए हम जितने भी इस्लामी तरीके से हम जो काम कर सकते हैं वो काम करें, कुर्बानी दें अल्लाह की राह के अंदर, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। शहर भर में मुनक्किद होने वाले ईद के इज्तिमात के दौरान सिक्योरिटी के भी सख्त इक़दामात किए गए थे। ईद उल अज़हा की नमाज के लिए शहर भर में इज्तिमा। गुरु मंदिर सबील वाली मस्जिद में ईद उल अज़हा की नमाज अदा की गई। ईद उल अज़हा के मौके पर शहरी कहते हैं कि इस ईद पर फ़लस्तीन भाइयों को अपनी दुआओं में लाज़मी याद रखें। तफसीलात फरहान खान की रिपोर्ट में। ईद उल अज़हा की सबसे पहली नमाज गुरु मंदिर सबील वाली मस्जिद में अदा की गई। नमाज ईद में बच्चे, बड़े और बुजुर्ग अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज के बाद लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी और कहा कि इस ईद पर फ़लस्तीन बहन भाइयों को ना भूलें। को ईद मुबारक कहेंगे और सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के बाद यही है कि दुआ के बस अल्लाह पाक दुनिया भर में हमारे मुसलमान भाइयों को, खासतौर पर फ़लस्तीन के मुसलमान भाइयों को अल्लाह पाक जो ना अपने अमान रखे, उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आज सुन्नत इब्राहिमी का दिन मनाया जा रहा है ख़ास तौर पे, तो उसके लिए हम जितने भी इस्लामी तरीके से हम जो काम कर सकते हैं वो काम करें, कुर्बानी दें अल्लाह की राह के अंदर, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। नमाज ईद की अदायगी के बाद मुल्क की तरक्की, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा की फलाह बहबूद के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गईं। कैमरामैन दानियल सैयद के साथ फरहान खान, सिटी 21। ईद का दिन, ईद अपने प्यारों के साथ, लेकिन डॉक्टर इस ईद के दिन भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जिना अस्पताल कराची के शोबा इमरजेंसी में डॉक्टर्स और नर्सिस कहते हैं यह हमारा पेशा है कि हर वक्त हम तैयार रहते हैं। मज़ीद जानेंगे मीर किरियो की रिपोर्ट में।
ईद हो या कोई और त्यौहार, कोरोना वायरस हो या कोई वबा, डॉक्टर्स होते हैं ईद के दिन भी फराइज सर अंजाम दे रहे हैं जिन्हें अस्पताल कराची के नौजवान डॉक्टर्स। जिन्हें अस्पताल कराची के इमरजेंसी में ईद के दिन भी डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी पर मामूर हैं। कहते हैं हमारा पेशा ऐसा है कि हर इमरजेंसी में मौजूद होते हैं। इमरजेंसी में मामूली जख्मी और दीगर केसेस आते हैं। आम दिनों के मुकाबले में ईद के दिनों में ड्यूटी मुश्किल है। हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हमें इसमें ये नहीं देखना होता कि ईद का दिन है या नॉर्मल डे है, वो सारे दिन एक ही जैसे होते हैं और जिस मकसद के लिए हम हैं उसी मकसद को हर दिन सर अंजाम देना पड़ता है। और मैक्सिमम पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो ब्लंट ट्रॉमा के आते हैं, या कोई नाइफ इंजरी के आते हैं, या कोई ऐसे आते हैं पेशेंट के हाथ कट गया कि काट रहे थे तो हाथ कट गया, ऐसे कोई पेशेंट आते हैं। तो ब्लंट ट्रॉमा और ऐसे पेशेंट हमारे पास ज़्यादा आते हैं, जिसका रेशो ईद में ज़्यादा हो जाता है। वैसे कम्पेटिटिव होता है लेकिन ईद में थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। डॉक्टर्स का कहना था कि आज के दिन ज्यादातर रोड हादसात का शिकार लोग आते हैं। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ मीर कीरियो, सिटी 21। ईद की खुशियों में सब शरीक। ताजा बरादरी भी ईद कुर्बान पर मसरूफ, कुर्बानी की और फिर गोश्त भी तकसीम किया। सीनियर नायब सदर FPCCI साकिब फयाज मग्गू की आवाम को मुबारकबाद। कहा सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के वक्त किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचाना गलत है। अलाइशें सड़कों पर ना फेंके। बिजनेसमैन पैनल प्रोग्रेसिव के सरबराह शबीर मंशा का कहना था कि ईद हमें कुर्बानी और एहसार का दर्स देती है। ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट माहिर अदनान पराचा ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और कुर्बानी, ईद कुर्बान का पैगाम, हर कोई ईद की खुशियों में शरीक। ताजिर रहनुमा भी ईद पर मसरूफ। सीनियर नायब सदर FPCCI साकिब फयाज का ईद उल अजहा के मौका पर कहना है कि सुन्नत इब्राहिम की अदायगी के वक्त किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचाना गलत है। अलाइशें सड़क पर होने की वजह से इलाके में मजीद बीमारियां फैलती हैं। कुर्बानी करते हैं, इसको जो है हम अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। इसको आम आवाम के लिए परेशानी का बाइस नहीं होना चाहिए। जो अलाइशें इधर फेंक दी जाती हैं घरों के आगे, सड़कों पे, और जिससे पूरा शहर, पूरे गांव, पूरे शहर, पूरा पाकिस्तान हमारा जो है वो एक कचरे के ढेर में तब्दील हो जाता है, तो उसकी तरफ मैं तवज्जो लाना चाहूँगा कि ये नहीं होना चाहिए। बिजनेसमैन पैनल प्रोग्रेसिव के सरबराह शबीर मंशा का कहना था कि ईद उल अजहा मुसलमानों का एक बड़ा त्यौहार है। ये ईद हमें कुर्बानी और एहसार का दर्स देती है। ईद के मौका पर दुनिया को हमारा अमन का पैगाम जाता है। ईद के मौके पे जो कि एक बहुत बड़ा मुसलमानों का त्यौहार है, इसके साथ हज भी आती है, और ईद और हज के ऐसे मौके पे जब पूरा आलम इस्लाम एक साथ इकट्ठा हो जाता है तो फिर उस वक़्त अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, और तमाम दुआएं जो कि अल्लाह पाक कबूल फरमाते हैं, और कुर्बानी का जज्बा जो कि सुन्नत इब्राहिमी के तौर पे है वो सब चलता है, और उसकी वजह से पूरे इस्लाम में, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में हमारा एक अमन का पैगाम जाता है, कुर्बानी का पैगाम जाता है। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट माहिर अदनान पराचा की ओवरसीज पाकिस्तानियों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। कहा ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क से बाहर रहकर मुल्क में सरमाया भेजते हैं, इनकी वजह से पाकिस्तान में खुशहाली का दौर दौरा है। ओवरसीज पाकिस्तानी जो इस टाइम पे मुल्क से बाहर रह रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में खुशहाली का दौर दौरा स्टार्ट होने लगा है, तो इस मौके पे मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। और ईद के इस पुरमसरत मौके पे मैं दरख्वास्त करूँगा अहलियान कराची को कि ईद की कुर्बानी के फ़राइज़ अंजाम देने के बाद जानवरों की अलाइशें अपने मुकर्ररा जगह पे डालें। ताजरों का कहना था कि ये ईद हमें एक दूसरे के दुख बांटने का पैगाम देती है। मुत्तहिदा अरब अमारात की काउंसिल जनरल बखीत अतीक रोमैती ने ईद उल अज़हा अपने रिहाइश गाह पर मेहमानों के हमरा मनाई। उन्होंने बच्चों में ईदी भी तकसीम की। मुत्तहिदा अरब अमारात की काउंसिल जनरल बखीत अतीक रोमैती और UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद और वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद ने पाकिस्तानी अवाम को ईद की मुबारकबाद दी। बखीत अतीक रोमैती बच्चों में घुल मिल गए। उन्होंने ईदी भी तकसीम की। काउंसिल जनरल बखीत अतीक रोमैती की जानिब से मेहमानों के तवाज़ो अरब के रवायती मशहूर कहवे से की गई। खाने में मेहमानों को अरब की सकाफती डिश मंदी पेश की गई। बखीत अतीक का कहना था कि ईद के मौके पर पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में तरक्की करे, अवाम खुशहाल हों। ईद अपनों में घुलने मिलने का ज़रिया होती है। ईद उल अज़हा हम सबको कुर्बानी और एहसार का सबक देता है। और दिन भर गर्मी पड़ने के बाद ईद की रात मौसम खुशगवार हो गया। कराची में गहरे बादलों के डेरे, बोर्ड बेसन, क्लिफ्टन और अतराफ के इलाकों में बूंदाबांदी इस वक्त हो रही है। आपको बताएं कि गहरे बादल छा चुके हैं, बादलों के डेरे हैं इस वक्त कराची में। बोर्ड बेसन, क्लिफ्टन और अतराफ के इलाकों में बूंदाबांदी इस वक्त जारी है। कराची में
गहरे बादलों का राज है। इस वक्त दिन भर गर्मी पड़ी है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि रात के वक्त मौसम खुशगवार हो गया है। शहरी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। कराची में गहरे बादलों के डेरे हैं और बोट बेसन, क्लिफ्टन और अतराफ के इलाकों में इस वक्त बूंदाबांदी जारी है।